हाँ जी, शुरू करते हाँ सीनियर टीचर 2011 ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 7 ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਸੂਫੀ ਵੀਰ ਕਿੱਸਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 2011 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਾਈਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਲੋਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਲਹਾਰ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਦੇ ਨੇ 54 ਬਈ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਸੀ ਹੈ 54 ਉਹਦੇ ਪਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50-50 ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50-50 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ 50-50 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50% ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। 1/3 ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 50-50 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੌਥਾ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ? ਏ ਆਸਾ ਤੇ ਸੂਹੀ, ਬੀ ਤਿਲੰਗ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ, ਗੌੜੀ ਤੇ ਆਸਾ, ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਆਸਾ ਤਿਲੰਗ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ ਬਈ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਆਸਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 64, 63, 53, 35। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ 63 ਬਈ, 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 18 ਹੈ ਬਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ
क्वेश्चन गलत होया तो उनके पीछे कारण ये रहा है कि उसने की किया, पट्टी बाणी दो गुरु साहबान लिखी है बई, एक दे विच पौड़ियां की संख्या 35 सी, दूजे च 18 सी। ते आपां नूं बस इत्थे ही यही चीज ध्यान रखनी सी बई अमरदास जी द्वारा रचित पट्टी बाणी च कितनियां पौड़ियां सी, 18। अगर आपां गुरु नानक देव जी की जी पट्टी बाणी रची है उसकी तरफ चले जाते तो आपां थोड़ा जा गलत हो सकता सी। यानी कि जो तत्थ है उन्होंने बरीकी नाल समझना है। अगर उस तो मिलता जुलता तत्थ अगर कोई होर है तो उस बारे भी आपां पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो तत्थ आपां कन्फ्यूज करेगा। हुण अपने इत्थे की अगर जे कोई बच्चा कन्फ्यूज होया तो 35 18 च ए या बी ऑप्शन दे विच कन्फ्यूज होया होगा, और ए या बी ऑप्शन कन्फ्यूज होके उसने अजिहा किया होगा बई कि वह बी ऑप्शन की तरफ गया हो। तत्थ नूं किस तरीके नाल याद करना है, उन्होंने किस तरीके नाल दिमाग च सैट करना है, जिवें लाइब्रेरी पुस्तकां सैट होंदियां उस तरीके नाल सैट करना है ताकि गलत ना हो। प्रश्न नंबर 7, गुरु अमरदास जी ने किस वार की रचना की है बई? गुरु अमरदास जी ने किस वार की रचना की है? तो गुरु अमरदास जी की बड़ा ही सौखा जा मैं तुहानूं सूत्र दस्सिया सीगा। गुरु अमरदास जी, गुजरी रामकली सूई मारू, हे गुजरी तू बच जा, रामकली सूई मार दूगी तेरे। ते गुजरी रामकली सूही मारू 4 वारा उन्होंने रचिया ने। ते गुजरी भी है, रामकली भी है, सूही भी है, पर मारू वार नहीं है, जगह वड़हंस लिखा है, तो जी वड़हंस की वार है वो नहीं है। प्रश्न नंबर 8, घोड़ियां वणजारे लोक काव्य रूप है, इनकी रचना किसने की है बई? घोड़ियां ते वणजारे की। ऑप्शन बी गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने है जो इन्हों की घोड़ियां वणजारे जो लोक काव्य रूप ने उन्होंने रचना की है। हुण अगे आपां गल करिए शहीदां दे सरताज बई। शहीदां दे सरताज है वो किहड़े गुरु है? गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी। शहीदां दे सरताज ने जिहड़े वो गुरु अर्जन देव जी है सी बई। शहीदां दे सरताज देखो अपने नोट्स के अंदरों अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और अपना गलत होना वो वड्डा खामियाजा हो जाऊगा अपने लिए। आ ध्यान रखना है, अपने नोट्स है वो आपको चंगी तरह याद होने चाहिए है। 9वीं तो 12वीं का सिलेबस है वो आपको चंगी तरह याद होना चाहिए है। बीए के जोड़े नावल नाटक कहानियां वगैरह है उन्होंने बारे आपको चंगी जानकारी होनी चाहिए है। उस तो बाद अगर आप गल करिए तो जड़ियाँ 4-5 किताबां दसी हैं उनके बारे चंगी जानकारी होनी चाहिए। फिर उस तो बाद अगर गल करिए तो जी मैं 14 किताबां दसी हैं उनके बारे चंगी जान। इस तरीके जफा पाना सिलेबस में, ना कि सीधा बड़ा जफा पा दीए आप और आप घुलाटी वाली तरह माड़े घुलाटी वाली तरह किधर पिठ लवा के बह जाइए। तो इस चीज को ध्यान रखना है बई। शहीदां दे सरताज है जो वो गुरु अर्जन देव जी है, क्योंकि सब तो पहली शहीदी जी हुई है वो गुरु अर्जन देव जी की हुई है। उन्होंने तो बाद गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी है जो सरबंस दानी है बई, उन्होंने सारा सरबंस ही दान करता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरबंस दानी आया था। गुरु गोबिंद सिंह और शहीदां दे सरताज जो आ जाए कई बार आया था क्वेश्चन इसी कारण आया था, क्योंकि इस बीच ना बच्चे जो गोबिंद सिंह जी कर देंगे है, परंतु फिर बाद उन्होंने पता लगता है कि ओहो है तो अर्जुन देव जी करना सी। 12वां माज दा रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 10। 12वां माज, ठीक है जी। 12वां एक तमाज है, एक 12वां तुखारी है बई। 12वां माज की जी रचना है वो की है गुरु अर्जन देव जी ने। और थोड़ा जा होर थोड़ा जा बेहतरीन बना देंदा इस प्रश्न नूं, तां वो एवें हो सकता सी बई संक्रांत वाले दिन किहड़े 12वां का पाठ किया जाता है, फिर उत्थे 12वां माज 12वां का पाठ किया जाता है पर 12वां माज है कि तुखारी है, फिर उत्थों आपां प्रश्न कढ़ के लाना पैंदा 12वां माज थोड़ा जा उस तो अगले स्टैप का। परंतु कोई दिक्कत नहीं, जी चीज़ आपको पता है उस तो अगले स्टैप तक भी आपको पहुंचना आना चाहिए। परंतु आज जो क्वेश्चन पाए गए हैं सारे के सारे फर्स्ट स्टैप के क्वेश्चन पाए गए, तथ्यात्मक पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 11, गुरु तेग बहादुर जी ने किन्ने रागा च बाणी रची है भाई? ठीक है भाई, 15, 16, 30, 19, बी ऑप्शन 15 बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 12, जाप साहिब की भाषा है। दुकालंग परणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। कई बार की कहते कि लोगों ने टैगलाइन लिखी होंगी है भाई गड्डियां दे पिछे, केंद्री पंजाबी नहीं है, मलवई नहीं है, ब्रिज हैगी है भाई, ब्रिज भाषा है। तीन ही ऑप्शन सीगे, बड़ा सरल जहा क्वेश्चन, सरल तो सरल क्वेश्चन पाने की कोशिश की है भाई। बच्चे 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेरा सी अंदाजा 45 क्वेश्चन सही करन, पर बहुत घट लोग सी। जफरनामा रचना की भाषा है। जफरनामे की जी भाषा है बई पंजाबी, ब्रिज, संस्कृत या फारसी। ते जफरनामा है जोड़ा वो फारसी दे विच लिखिया गया बई। प्रश्न नंबर 14, भाई गुरदास जी की 11वीं वार का विषय है। ग्यारहवीं वार का जो विषय है वो दसना है। सचकूट की वार, गुरसिखा की वार, गुरुआं बारे, भगतां बारे। गुरुआं बारे पहली वार दे रखे है, होर भी कई वार दे रखे है, परंतु जी 11वीं वार का विषय है वो गुरसिखा बारे है बई। बाबा फरीद जी ने किन्ने शब्दों की रचना की है बई? 112, 130, 4, 132। किन्ने शब्दों की रचना की है बई? हाँ, शब्द पूछे सी, श्लोक नहीं पूछे सी बई। तो इसी का ध्यान रखना है थोड़ा जा, क्वेश्चन जो पढ़ना है थोड़ा जा। हाँ जी, 4 शब्द बिल्कुल सही है। हाँ, ये आप क्वेश्चन इसी कारण जिवें पहला क्वेश्चन पाया गया, तो पेपर वाला भी एवं करता है कि कम से कम 10 प्रश्न ही जे पाता है कि बच्चा सही तरीके क्वेश्चन पढ़िया है कि नहीं। उन्हें हुण मैं जो क्वेश्चन पाया सी, तो मैनूं एवं लग्या सी बई जरूर की कहते हैं कि एक क्वेश्चन कई बच्चों का गलत होएगा। ते आपां जदों भी पेपर सरल आवे तो आप आराम नाल बरीकी नाल करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत होने आपां नूं आंदे होए, आपां नूं जिहड़े आंदे सी वो 2 क्वेश्चन गलत होने भी बहुत वड्डी गलती मन्नी जाती है। बंदा जिहड़े भी रह गया, मैं 4 नंबर तो रह गया, तो उनके पीछे कारण आ ही रहिंदा है। वो पेपर करते हैं, पेपर करने तो बाद उन्होंने तो सिली मिस्टेक हो जाती है, उन्होंने पता होता है, उन्होंने सब बच्चों को पता है 112 श्लोक है, 4 शब्द है, सारे पता है 112 श्लोक है, 4 शब्द है, सबनों पता है। परंतु जो क्वेश्चन उन्हें पढ़िया, पढ़न तो बाद बस उनके जी माइंड के अंदर जी चीज है वो बस चढ़ गई 112 श्लोक, और क्वेश्चन है जोड़ा गलत हो गया। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि की पूछे, शब्द पूछे, शब्द 4 है भाई। सी ऑप्शन सही है, शब्द 4 है, श्लोक नहीं पूछे सी। तो इस तरीके की है कि जेड़े थोड़ा जा आपां नूं गौर है प्रश्न नूं, एक बार पढ़ो, दूजी बार चंगी तरह पढ़ो। प्रश्न सरल है तां भी उन्होंने दूजी बार चंगी तरह पढ़ो, फिर की कहते हैं कि प्रश्न का उत्तर दो। अपना टीचा आ रहे कि अपना ऐसे पेपरों के घट तो घट क्वेश्चन है जोड़े गलत होण। शाह हुसैन किस सिलसिले का बानी सी बई? कादरी, हुसैन शाही, चिश्ती, बहलोल शाही। शाह हुसैन सी बई कादरी संप्रदाय तो संबंधित सीगा, परंतु बानी लिखे देखो, बानी शाह हुसैन किस सिलसिले का बानी सी? शाह हुसैन कादरी तो संबंधित सी, पर कादरी तो बाद उन्हें की किया कि हुसैन शाही सी जेड़ा, हुसैन शाही सिलसिले की रचना उन्हें स्थापना की बई शाह हुसैन ने। शाह हुसैन कादरी तो संबंधित सीगा, परंतु बाद च उन्हें की किया कि उनका एक सिलसिला सी हुसैन शाही, उन्हें खुद के नाम तो सिलसिला अगे संप्रदाय है जो स्थापित करता हुसैन शाही। आप क्वेश्चन फिर ढंग नाल पढ़ना सीगा, ढंग नाल पढ़ना सी, और इत्थे आप बानी ते जोर देना सीगा। बानी का मतलब बनता स्थापित कि शाह हुसैन ने किहड़े सिलसिले की स्थापना की, एक क्वेश्चन सीगा। और मनु लगता कि जो सारे जवाक है ना सब नूं पता सीगा भाई उन्हें किहड़े सिलसिले की स्थापना की सी। कोई भी बंदा है ना जिन्हें जिन्हें भी सिलसिले की स्थापना की है तो उन्हें या तो अपने नाम से की है, अपने गुरु के नाम से की है भाई सिलसिले की स्थापना। तो जो हुसैन शाह अगर
सिलसिले की स्थापना करूगा तो वो अपने नाम उत्ते ही करूगा बई। हुसैन शाही बी दे उत्ते उन्हें इस सिलसिले की स्थापना की पई। हुण 17 नंबर, वजीद ने किन्ने सलोकां की रचना की है बई? सलोक दसने सी, वजीद ने किन्ने सलोकां की रचना की है बई? वजीद दे किन्ने सलोक है बई? होर दसो बई, होर दसो। हाँ, ए 40। वजीद दे सलोक किन्ने है बई? 40 सलोक है वजीद के। वजीद ने 40 सलोकां की रचना की है बई। देखो एक चीज ध्यान रखियो, जदों भी कोई भी अगर बंदा आ जाए, उन्हें श्लोक भी लिखे है, शब्द भी लिखे है, तूतिए भी लिखे है, सब कुछ उन्हें लिखता, 12 में लिखता, किसी भी बंदे तो संबंधित अगर उसने कुछ भी लिखे है, आपको सारे वखरे वखरे पता होना चाहिए। किधर एवं ना हो अपने फिर भिड़ते फिरन एक दूजे विच श्लोक किन्ने लिखे, उन्हें फलाने किन्ने लिखे, उन्हें तूतिए किन्ने लिखे, आप चक्कर च पई है नहीं। 40 वजीद ने किन्ने श्लोकां की रचना की है? 40 श्लोकां की रचना की है भाई। यानी कि हजे तक आपको होर अभ्यास की लोड़ है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। पेपर वाले टाइम अपनी तैयारी होर वधिया हो जाएगी और ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न अपने गलत नहीं होणगे। ऐसी तैयारी आप करांगे बई कि तथ्यात्मक प्रश्न अपने गलत ना हो। ਜਿਹੜਾ अपने नोट्स चो आ जाए, ਜਿਹੜਾ 9वीं तो 12वीं ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाए, वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। होवेगा भी नहीं, आप तैयारी हिसाब की करांगे बई। सुल्तान बाहू दे कलाम की पछाण है बई, बिरहा, प्रेम, बौद्धिकता ते हू दी हेक कोई नहीं। ते यह है बौद्धिकता ते हू दी हेक बई। सुल्तान बाहू दे कलाम की जिहड़ी मुख पछाण है, शाह हुसैन का है ना, उनके उत्ते बिरहा भारी है बई शाह हुसैन का, पर सुल्तान बाहू है उन्हें तो की है कि आपू जे किसी का क्वेश्चन गलत होया तो कितने ना कितने दिमाग के सुल्तान बाहू की जगह शाह हुसैन आया होना, और शाह हुसैन आने तो बाद खलारा पिया है बई, वो दूजे ऑप्शन की तरफ चला गया। परंतु जे कि सुल्तान बाहू ही दिमाग के रहा और बाहू की कोई उन्होंने काफियां, उनकी कोई लिखत, उनकी कोई रचना, उनकी सीध के आती, तो वो हू दी हेक है जी उनकी बाहू। अल्लाह चबे दी बूटी हू, इस तरीके हू दी हेक तो संबंधित होंगे बहुत रचना है, जी लिखत है उन्हें हू दी हेक है, बौद्धिकता ते हू दी हेक है जो उनकी रचना दे विच है बई। अगे आप गल करिए बुल्ले शाह ने किन्ने दोहड़िया की रचना की बई? आ दसो, बुल्ले शाह ने किन्ने दोहड़िया की रचना की? 40, 3, 156, 48। होर बई होर आन दो, फटाफट आन दो बई। फिर आप देखिए ना बई कि अपना ये मकसद नहीं गा, अपना मकसद ये है कि बई अपना अगर किसी का गलत होया तो उनके पिछे की कारण है, वही दसो जो तुम भरिया है। फिर आप कोशिश करा बई तुम क्यों गलत भरता। चलो सब ही सही है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, सब याद सी। और कई बार क्वेश्चन आया था बई, कई बार क्वेश्चन आया था बुल्ले शाह दे टोटल ही आया था बई, जिवें 40 गंढा, 3 सिरफियां, 156 काफियां, 48 दोहड़े, अड़ दोहड़, अड़ दोहड़, अड़ दोहड़, 48 दोहड़े, 1 अठवारा, 1 12वां। आ की कहते हैं कि सारे वक्री वक्री याद सी, बहुत वधिया गल है बई। 48 इहदे दोहड़े सी बई। अगे बुल्ले शाह दा मुरशद सी शाह इनायत कादरी, सखी मोहम्मद दरवेश, अब्दुल रहमान देलवी, हबीबुल्ला कादरी। तो उनका जो मुरशद सी वो सी शाह इनायत कादरी बई। ठीक है बई, शब्द सही है। बुल्ले शाह दा 12वां किस महीने तो शुरू होता है बई? चेत, अस्सू, बैसाख, भादो, किस तो शुरू होता है? सारे का सही है बई, बी ऑप्शन अस्सू, अस्सू तो शुरू होता है बई। अली हैदर की रचना किस भाषा च है? अली हैदर की मुल्तानी, केंद्री पंजाबी, फारसी, ब्रिज। ठीक है बई, मुल्तानी। अली हैदर की रचना मुल्तानी च है। रोशन दिल, कशबनामा, बफिंदगी दा रचनाकार कौन है बई? रोशन दिल, रोशन दिल ते कसबनामा बफिंदगा इंदा है गुलाम फरीद दाना, अली हैदर, फर्द फकीर,
डी ऑप्शन सही है, फर्द फकीर। कोई बात नहीं, फैक्ट याद कर दे ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ। ਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 24 ਦਮੋਦਰ ਰਚਿਤ ਹੀਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੈ ਬਈ? 990, 960, 961, 360। 961 भाई गंगा सिंह बेदी अनुसार, सी ऑप्शन सही है। ठीक है जी। 25 नंबर गंगा सिंह बेदी ने हीर दे खरड़े प्राप्त किए, किस तो किए भाई? हीर दे खरड़े किस तो प्राप्त किए? बरदशाह, हरि सिंह महताब सिंह, खुदी या उपरोक्त सारे? ठीक है भाई, सारे का सही है। गंगा सिंह बेदी ने जो खरड़े प्राप्त किए वो हरि सिंह और महताब सिंह तो प्राप्त किए। स्विनर्टन ने जो प्राप्त किए बरदशाह तो प्राप्त किए, सी स्विनर्टन ने, पर गंगा सिंह बेदी ने हरि सिंह ते महताब सिंह तो प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन, पीलू दे मिर्जे का गुरमुखी लिपि च उतारा किया, किसने किया भाई? बुद्ध सिंह, धनीराम, वीर सिंह, पूरन सिंह। बुद्ध सिंह ने उतारा किया है भाई। अगला क्वेश्चन, पीलू ने मिर्जा किस काव्य रूप च रचिया भाई? दवैया, बैत, सद, सेरफी? सी भाई शब्द सही आ रहा, सद ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੱਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਯੂਸਫ, ਪਰੰਤੂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਵਾਰਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ? ਦੁਖਾਂਤਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਸੁਖਾਂਤਕ ਤੇ ਚਿੰਨਵਾਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ, ਭਗਤੀ ਤੇ चिन्हवादी? हाँ जी, ए ऑप्शन सही है भाई, दुखांतक है और रूहानी भी है। दुखांतक है किस्सा और रूहानियत उन्हें कोशिश की है देने की। हीर रूह ते चाक कलबूत जानो, इथों ने रूहानियत की कोशिश की है। हासम रचित सस्सी पुन्नू का छंद है भाई, हासम ने जी सस्सी पुन्नू रची है उसका छंद की है? बैत, दवैया, दौरा, सद? इन्होंने विचों केड़ा है भाई? दवैया। ठीक है भाई, दवैया है। हासम दे किस्से सोहनी महिवाल दी शैली है, हासम का किस्सा जो सोहनी महिवाल है दवैया छंद के अंदर है। 151 उसके बंद ने और उनकी शैली है वो संखेप है भाई, संखेप शैली। कादर यार रचित पूर्ण भगत सीरफियां हैं, किनिया सीरफियां ने भाई? उसके विच 5 सीरफियां, 5 सीरफियां ने, उनके 140 बंद ने, सब ने 5 सीरफियां दसियां, बिल्कुल सही। 140 वाले चक्कर च कोई नहीं पिया, बहुत वधिया। फजल शाह की रचना नहीं है, फजल शाह का सूत्र भाई थोड़े दिमाग च आ गया होना, जे नहीं भी आया किसी ने फैक्ट अगर याद किया तो बहुत वधिया गल है, वरना सूत्र सीगा फजल तो सोहनी ससी हीर ले लै यूसफ, फजल तो सोहनी ससी हीर ले लै यूसफ। 3 दे विच सोहनी आ गया, पर मिर्जा ऑप्शन है मिर्जा साहब, फजल शाह ने मिर्जा साहब की। अगला, वीर हकीकत राय का रचनाकार है? सिद्धा जोड़ा, अगर सिंह, केशवदास, निहाल सिंह? हकीकत राय का बी ऑप्शन सही है भाई, अगर सिंह। नजाबत दी वार नूं पूरा करन दा काम मैकलेगन ने किस नूं सौंपिया? मैकलेगन ने किस नूं सौंपिया भाई? बरदशाह, गंगा सिंह बेदी, हरिकृष्ण, महताब सिंह? ठीक है भाई, सब दा सही है। हरिकृष्ण कौल नूं मैकलेगन ने हरिकृष्ण कौल नूं सौंपिया, और हरिकृष्ण कौल ने अगे जीवन ते मुल्ला नां दे मरासी सी उन्हां तों इकट्ठा कीता भाई। हरिकृष्ण कौल सही आंसर। 35 नंबर, 36 नंबर भाई, करनाल की लड़ाई च आकल खान नूं किसने मारिया भाई? आकल खान सी, उसनूं किसने मारिया? बदर बेग, सागजाली, अजीज खान, नूर बेग? ठीक है भाई, बदर बेग। देखो करनाल की लड़ाई दे विच की है कि आकल खान है जिहड़ा
आकल खां शाह गजाली ते अजीज खान नूं मारदा है बई। शाह गजाली ते अजीज खान नूं आकल खां जिहड़ा वो मारदा है, परंतु आकल खां नूं बदर बेग मारदा है बई। आकल खां नूं बदर बेग मार दिंदा है। सही है बई। चठियां दी वार मुताबिक महा सिंह ने किस नूं हराया? नूर मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, चढ़त सिंह, किसी नूं नहीं। चठियां दी वार मुताबिक महा सिंह ने किस नूं हराया? गुलाम मोहम्मद नूं। बी ऑप्शन सही है बई, गुलाम मोहम्मद नूं हराया। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬਈ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਾਕਰਾ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਈ। ਸਹੀ ਹੈ। सब तो पहला चेत सिंह, फिर खड़क सिंह, फिर नौनिहाल उधम सिंह, फिर चंद कौर, नौनिहाल, फिर चंद कौर बई। इस तरीके ना चेत सिंह, खड़क सिंह, उधम सिंह, नौनिहाल, चंद कौर, इसकी तरतीब रही है। श्याम सिंह अटारी वाला किस जंग में शहीद होया? सबरावा, मुदकी, फेरू साहब बद्दोवाल। केड़ी जंग में शहीद होया भाई शाम सिंह अटारी वाला? शाम सिंह अटारी वाला जी सबरावा की जंग, ए ऑप्शन सही है। सबरावां दी जंग दे विच ओह शहीद होया सीगा। अगला बई, लहरां दे हार प्रीत वीणा दे रचनाकार हन गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, वीर सिंह, पूरन सिंह, धनीराम चातरक। लहरां दे हार प्रीत वीणा बी ऑप्शन है सही है बई, भाई साहब भाई वीर सिंह। हुण अगे है जी अगला क्वेश्चन, पंजाबी की पहली भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जेतू कवित्री है? हाँ जी, खुशबू अरोड़ा जी ने आ गलती करती, प्रश्न नूं सही तरीके नाल पढ़िया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रायल चल रहे, ट्रायल च अगर गलती होंदी है तो आप उस गलती नूं अगे सुधार सकते हैं बई, परंतु आप इन्ने ट्रायल लेंदे रवांगे तो अगे तो अपडेट होना आप। हाँ जी, पंजाबी की पहली भारतीय साहित्य अकादमी जेतू पुस्तक हैगी है वीर सिंह दी मेरे साइया जीओ, परंतु आप प्रश्न पूछा गया सीगा कवित्री जनानी पहला केड़ी कवित्री है उस बारे दसना सी बई। कवित्री सी अमृता प्रीतम। कवि बारे नहीं पूछा, कवि बारे नहीं पूछा, कवित्री बारे पूछा सी। जे पहला कवि होंदा ते भाई साहब भाई वीर सिंह। पहली कवित्री, सब तो पहला भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 मेरे साइया जी भाई साहब भाई वीर सिंह नूं। दूजा साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृता प्रीतम कवित्री नूं मिलिया सुनहेड़े लई 1956 दे अंदर। दलीप कौर टिवाणा नूं मिलिया एहो हमारा जीवना लई। प्रभजोत कौर नूं मिलिया 1964 दे अंदर पब्बी उहदी जिहड़ी लिखत सी उहदे लई। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਜੇਤੂ ਕਵਿਤਰੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਔਰ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਐਸ ਕਵਿਤਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ केसर क्यारी तो फुल्लां दी टोकरी भरी ते सूफी खाने दे विच नूर जहां ते नल दमयंती नूं पकड़ाती। और ये तुहानूं चंगी तरह पता ही सी, इस कारण तुसीं नहीं भुल्ले। बहुत वधिया। केसर क्यारी धनीराम चातर कहंदा हैगा बई सही। वो फुलवाड़ी वो फुल्लां दी वाड़ी च गया सी, उत्तों फुल्लां दी टोकरी भरी। केसर क्यारी च गया बई, बाड़ी च गया, चंदन बाड़ी च गया, क्यारी दे विच गया, फुल्लां दी टोकरी भरी और भर के सूफी खाने अंदर नूर जहां नाम की कुड़ी मान लो नल दमयंती सी उन्होंने जाके देती पई है। धनी राम केसर क्यारी लई। पूरन सिंह की जीवन ते रचना का रचनाकार है पूरन सिंह, महेंद्र सिंह रंधावा, कृपाल कसेल, वीर सिंह। पूरन सिंह की जीवन ते रचना महेंद्र सिंह, बी ऑप्शन सही है भाई, महेंद्र सिंह। जीवन ते रचना रचना रचना, चलो ठीक है जी। अगे
मोहन सिंह किस धारा का कवि है? रोमांसवादी, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी रोमांसवादी, रहस्यवादी, इन्हां चों किहड़ा है बई? मोहन सिंह रोमांसवादी प्रगतिवादी धारा का कवि है। अगला, अज आखां वारस साह नूं रचना किस दी है? अज आखां वारस साह नूं किते कबरां विचों बोल, किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। शाहकार रचना है अमृता प्रीतम दी बई। पूरन सिंह, अमृता प्रीतम, वीर सिंह, प्रीतम सिंह, इन्हां विचों दसना सी बई। अमृता प्रीतम है सही ऑप्शन। अगला, अमृता प्रीतम दी प्रयोगशाली कविता दा शिखर, प्रयोगशील कविता दा शिखर दसना सी बई, केड़ा है? सुनेड़े, नागमणी, कागज ते कैनवास, अज आखां वारस साह नूं। कागज ते कैनवास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कागज ते कैनवास। प्रीतम सिंह सफीर किस धारा का कवि है? बौद्धिक, रहस्यवादी, रोमांटिक, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी धारा का कवि है। प्रीतम सिंह सफीर बौद्धिक रहस्यवादी है बई, बौद्धिक रहस्यवादी है बई। उन्हें प्रगति की गल भी की है, क्रांति की गल भी की है, परंतु जे एज ऑप्शन आन तो इहदे होएगा बौद्धिक रहस्यवादी कवि। अमरगीत सुगंध शरीर किस दी रचना है बई? दसिया सी मैं, बंदरगाह दी समीर च अमर गीत ला के नाच कीता, बावे बलवंत ने, बाबा बलवंत ने बंदरगाह दी समीर च ठंडी ठंडी हवा बंदरगाह ते चल रही सी, उत्थे अमर गीत ला के नाच कीता। अमर गीत सुगंध समीर बाबा बलवंत की रचना है भाई। 49% सौ जा मेरे माल का वीरान होई रात, गीत का रचनाकार है, अपने दिता भी हुआ बई 9वीं तो 12वीं दे सिलेबस है जिहड़ा उस दे अंदर है। सौ जा मेरे माल का वीरान होई नाथ, हरभजन सिंह, ए ऑप्शन सही सीगा। हरभजन सिंह का बहुत ही पॉपुलर गीत है भाई हरभजन सिंह का। पंजाबी का शैले किस कवि नूं आखदे ने? पूरन सिंह, वीर सिंह, मोहन सिंह, शिव कुमार। ठीक है जी, शिव कुमार नूं कहंदे है पंजाबी का शैले। क्यों कहंदे ने? रोमांटिक अंश कारण। रोमांटिक अंश है जिहड़ा उनकी कविता, शैली की कविता च रोमांटिक अंश सी ते शिव कुमार की कविता विच भी रोमांटिक अंश सीगा। इस कारण की कहते हैं कि